Hello dear students, myself Vishal Saxena presented a third part of bending moment and shear force. But before watching this video, dear students and all the other audience, I will suggest that please watch the part 1 and part 2 which I already uploaded in my video. Before watching this part, here I will discuss the bending moment shear force diagram for a beam simply supported beam subjected to uniformly varying load, the related problem, and cantilever problem to draw and cantilever beam considered to draw shear force and bending moment diagram. Okay, so here shear force and bending moment diagram for a simply supported beam carrying a uniformly varying load from 0 at one end to W per unit length at the other end. A cantilever beam है AB. Here UD intensity varies from 0 from point A and W per unit length to point B, where and distance between A and B is L. That is span length of the simply supported beam is capital L. Okay, so our first step before drawing shear force and bending moment diagram is to calculate the support reaction for a simply supported beam. So for support reactions, vertical reaction RA and RB, that RA will be support reaction at A and RB will be support reaction at B. So for equilibrium condition, taking moment about A, so and take any section XX at a distance x from the left end A. Okay, so for taking moment about A, RB into L, into L is producing movement anti-clockwise, and from the right hand side of the portion of the section the anti-clockwise movement is positive. राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन में जब सेक्शन की राइट में देख रहे होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. सो आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू. W is the distance height xx. How to calculate the height? There are basically two methods to calculate the height sx. There are basically two triangles here. One is AXX, smaller triangle, and another one is big triangle. A, B, D, say point D. Okay. So calculate the height xx. We have to apply one method, that is similarity triangle method. That is xx upon BD will be equal to AX upon AB. So from here we have to get the height xx equal to x by 3. Okay, but now here for calculating moment we have to consider only one big triangle only. तो यहाँ पे हम लोग केवल एक ही है, मैंने जो बताया सिमेट्री ट्रायंगल, ये एक्स डिस्टेंस पे जब हम लोग लेंगे तभी अप्लाई होगा, जो मैंने अभी बता दिया. तो यहाँ आर बी इंटू एल डब्ल्यू एल बाई टू क्या हो गया, टोटल लोड. टोटल लोड क्या होता है, एरिया ऑफ लोड ट्रायंगल, जो कि as I already discussed in previous case, the total load will be the area of the beam. तो here load it is in the triangular form. हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे पहली बात, ये सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट. यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक, तो कि वाटर टैंक के सब है तो जो वाटर प्रेशर होगा 0 से वेरी करेगा. मान लो जो W है, स्मॉल W यूनिट वेट है टैंक एट द बॉटम में, और H है वो डेप्थ ऑफ द टैंक है. तो यहाँ से इसकी हाइट अगर H है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट अगर H है, तो यहाँ पे जो वाटर प्रेशर टॉप पे होगा वो 0 होगा. धीरे धीरे करके ये W इंटू एच, W क्या वेट है एट द बॉटम में, यूनिट वेट, W इंटू एच प्रेशर तो वेरी कर. तो ये UDL का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया. और एक डैम जो बनाए जाते हैं बीच में, रिवर में ओवरफ्लो बीचने के लिए, हाई से लो में जब ओवरफ्लो होने लगता है तो बीच में डैम बना दिए जाते हैं ताकि ये पानी को रोका जा सके. तो ये दो एग्जांपल्स हो गए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के. फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे shear force and bending moment diagram ड्रॉ करेंगे. हाउ वी ड्रॉ द shear force and bending moment diagram and how to calculate the support reaction for a simply supported beam subjected to UVI, that is uniformly varying load. Okay. So RB into L, that is anti-clockwise movement, right hand side of the section is positive, and WL by 2 is total load into. अब ये total load जैसा कि कैंटिलीवर सिंपली UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या हो रहा था, जो टोटल लोड निकाल रहे थे, दिस टोटल लोड in the previous case that is UDL we act at the center of the span length, but here in case of uniformly varying load this total load will act from point A where UD intensity 0 is 2/3 of the span length, यानी 2/3 A पॉइंट से लेंगे तो 2/3 L होगा, और अगर राइट हैंड पॉइंट से लेंगे तो ये 1/3 L डिस्टेंस के बराबर होता है, यानी 1/3 ऑफ स्पैन लेंथ. यहाँ पे अगर पूरे की बात करें तो 1/3 टाइम्स कैपिटल L यानी L/3 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेंगे तो ये 2/3 L डिस्टेंस पे ऐड करेगा.
तो अब हम लोग लेफ्ट साइड से ए पॉइंट से दे रहे हैं, तो WL/2 टोटल इंटू 2/3L, ठीक है, क्योंकि WL/2 ऐड कर रहा है क्या 2/3L फ्रॉम ए, तो RB यहाँ से आ गया WL/3, RA क्या हो गया, RA प्लस RB क्या हो गया, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्टिकल फोर्सेस, नेट वर्टिकल फोर्सेस सम विल बी इक्वल टू 0, तो अपवर्ड रिएक्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल लोड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो RA विल बी इक्वल टू टोटल लोड ऑन बीम माइनस RB, तो RA total load we have already found and RB we have already calculated, so our total load beam equal to WL/2 here and RB WL/3, so RA we get WL/6. now जो कि मैंने पहले बताया था कि सेक्शन XX, कंसीडर एनी सेक्शन XX at a distance x from end A, the shear force at section XX कितना होगा, Fx will be equal to RA, the section when we consider the left hand side of the section, the vertical load will be taken up, will be the upward vertical force will be taken positive, तो RA WL/6 minus load on length AX, load, how to calculate the load on length AX, XX height we have already found with the help of two methods. One method is based on the similarity triangle, that is XX upon BD will be equal to AX upon AB, एंड अनदर मेथड है यूनिटरी मेथड, एल लेंथ के लिए इसकी यूनिट इंटेंसिटी है W पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, W/L होगा, हम लोग को कितना चाहिए, AX लेंथ के लिए चाहिए, यानी X डिस्टेंस के लिए चाहिए, तो WL इंटू एक्स आया, यानी WX/L आ जाती है ये लेंथ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी हाइट क्या मार्क कर रखी है, XX हाइट WX/L, तो WX/L, अब ये क्या होता है, अब इस ट्रायंगल की, स्मॉल ट्रायंगल के लिए एरिया निकालना होगा, यानी टोटल लोड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू AX इंटू XX, हाफ इंटू X इंटू WX/L, तो क्या हो गया, हाफ इंटू X इंटू WX/L, तो WL/6 माइनस WX²/2L, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। तब क्वेश्चन नंबर 1 एक बेसिकली जनरलाइज फॉर्म क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल X के फॉर्म में, जो कि शो कर रहा है इसकी डिग्री 2 है, तो ये शियर फोर्स जो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक ग्राफ। ए पॉइंट पे क्या है, लेफ्ट हैंड पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू आ गई RA के बराबर WL/6, ओके, और बी पॉइंट पे एक्स L है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस, अब ये शियर फोर्स जो है ए और बी पॉइंट के बीच में सडनली चेंज हो रहा है साइंस का, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव के बीच में, सो देयर इज एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज 0, एक पॉइंट ऐसा भी होगा ए और बी के बीच में जहाँ शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, तो मान लिया हम लोगों ने इस सेक्शन ए एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट ए से एक्स पॉइंट डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू शियर फोर्स की क्या हो रही है 0, तो इसकी वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 1 को 0 को पुट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई L/√3 यानी कि 0.577 L। अब हम लोग यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसकी लेंथ L है, अब यहाँ से मैंने L/√3 कितना हो रहा था 0.577 L आ रहा था, टोटल लेंथ कितनी है L, तो जिस L में से अगर 0.577 L माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस कम आएगी, AC मैंने C पॉइंट अंदाजे से थोड़ा सा ज़्यादा BC से कुछ ज़्यादा मार्क कर लिया C पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने x = L/√3 लिखा, तो अब ये स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन थी, तो x क्या होगा, ये पैराबोलिक नेचर का होगा। अब यहाँ पे B पॉइंट पे क्या है, ये फोर्स WL/3 है, ये नेगेटिव है, जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिएक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे क्लोज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये पैराबोलिक नेचर का होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉजिटिव होगा। और मैंने पहले ही बताया था कि जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो जो उसमें वैल्यू शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब प्लॉट करते हैं वो ऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बेस लाइन के अबव ड्रॉ की जाती हैं, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट विल ड्रॉ अबव द बेस लाइन and negative values are drawn below the baseline, so WL/3 here is negative, so that's why WL/3 is taken below the baseline, okay, so this is all about the shear force diagram. Now for bending moment calculation, bending moment diagram, at point A and B the value of bending moment are 0, so moment also at a section XS at a distance x from the end, bending moment generally is given by the load into perpendicular distance। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, फोर्स यानी ये लोड जो होता है न्यूटन में, इसको इनटू परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उससे का प्रोडक्ट होता है, तो mx क्या हो गया R × x, सेक्शन की लेफ्ट साइड में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट हैंड पोर्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज जो लेफ्ट हैंड से पोर्शन अगर देख रहे हैं सेक्शन के लेफ्ट में देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, R × x पॉजिटिव घुमा रहा है इसको, तो ये पॉजिटिव हो गया, माइनस लोड ऑन लेंथ AX,
अब लोड ऑन लेंथ AX you are already calculated here WX square by 2L लोड ऑन लेंथ AX। तो ये अब ये एक्ट कितना करेगा, जैसा कि मैंने L डिस्टेंस के लिए बताया था कि जब लेफ्ट हैंड से लेते हैं वो 2/3 डिस्टेंस ऑफ लेंथ होता है, स्पैन लेंथ होता है, और राइट हैंड डिस्टेंस देखते हैं तो 1/3 होता है। तो अगर हम लोग स्मॉल ट्रायंगल AXX के लिए क्या होगा, A पॉइंट लेफ्ट पॉइंट हो गया और राइट पॉइंट कौन सा हो गया, X पॉइंट हो गया। तो राइट पॉइंट से X/3 डिस्टेंस पे होगा 1/3 ऑफ स्पैन लेंथ। तो ये स्पैन लेंथ यहाँ AXX ट्रायंगल की स्पैन लेंथ कितनी है, X है, तो ये 1/3 ऑफ X हो जाएगा और ये लोड हो गया। तो यानी WX/2/2 इंटू X/3। तो यहाँ से इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन आ गई WLX/6 माइनस WX3/6L। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये बेसिकली जनरलाइज इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग ये वी सी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड द बेंडिंग मूवमेंट वेरीज बिटवीन A and B अकॉर्डिंग टू क्यूबिक लॉ। तो बेंडिंग मूवमेंट according to equation second the variation of bending moment between A and B will be cubic because the degree of equation second is 3। यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक लॉ फॉलो करेगा। तो अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट occurs at a point where the value of shear force is 0। तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी फाउंड हियर द वैल्यू ऑफ shear force 0 at x equal to L/√3 that is 0.577 L। So putting this value of x equal to L/√3 in equation number second we will get mmax यानी maximum means maximum bending moment। So mmax will be equal to by putting x equal to L/√3। So mmax equal to WL/6 into L/√3 minus WL/6L L/√3 का होल क्यूब। तो we get mmax equal to WL square by 9√3। So here we see the bending moment diagram here, but we one thing with the whatever be the point A marked here and baseline will be the same baseline in bending moment also। जो भी baseline उन्होंने यहाँ ड्रॉ की है shear force डायग्राम उतनी ही लेंथ की हम लोग bending moment डायग्राम पर भी baseline ड्रॉ करेंगे। B पॉइंट यहाँ से सेम पॉइंट कोइंसाइड करेगा लोड डायग्राम से, इसलिए एक के नीचे एक बनाए आते तो वही सही होता है। तो यहाँ से here the value of bending moment varies according to cubic law। This is cubic, okay, this is also cubic। So here at point C the value of bending moment is maximum, that is WL square by 9√3 we have marked, and here A to C the distance is x equal to L/√3। So here from A to point C dash the bending moment variation is cubic, and from C to B also the variation of bending moment is cubic। This is all about the bending moment diagram, and these are the shear force and bending moment diagram for the generalized case of simply supported beam subjected to uniformly varying load। यहाँ पे मैंने एक जनरल केस बताया था, इसकी बीम की लेंथ L है, यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी है, W की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब मैं नाउ आई डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू UVL for simply supported beam। That is question is figure shows a beam pivoted at A, hinge support at A and simply supported at B carrying a load varying from 0 to A to 12 at A पे 0 to 12 km/m at B। Determine the reactions at A and B and draw the shear force and bending moment diagram। So this is simply supported beam, this is beam where the support at A is hinged, so reaction at A will be normal to this support and B is simply supported the normal reaction। So first of all we have to find out the support reaction at A and B for the given simply supported beam। Let RA will be equal to reaction at A that is hinge support and RB will reaction at B at simple support। So let us calculate the total load। Total load as I already discussed in generalized case that is area of the load diagram, that is half into base into height, that is half into AB into BC, half into 3 into 12 कितना हो गया 18 kilonewton। 18 kilonewton will be the total load। So first of all we have to draw the load diagram। So here we draw the UVL load variation and take any section x at a distance x from the point A, okay। तो सिग्मा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा Fy equal to 0, that is RA and RB the vertical reactive force and 10 kN will be the downward total load। So this upward force and load and downward force load total load will be equal। So RA plus RB will be equal to the 18, that is equation number 1। Also for equilibrium moment condition the net algebraic moment about any point will be equal to the 0। So RB into 3, this is the section from right side, RB into 3 anti-clockwise movement। So sigma MA equal to 0
तो RB into 3 anti-clockwise, because from the right hand side of the we take the right hand side of the section, the anti-clockwise movement will be positive. So RB into 3 minus 18 into 2 by 3, because from point A this will be produced clockwise movement, so minus 18, and this total load will be acting at a distance of 2 by 3 from the end A, as I already told in generalized case. 2 by 3 into span end and 2 by 3 into 3 from point A and 1 by 3 into 3, क्योंकि इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता है इसको। तो जहाँ एंड स्टार्टिंग पॉइंट या इसमें ऐसे ट्रायंगल है, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट A पॉइंट जहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है वो 2/3 ऑफ स्पैन लेंथ होता है, और बेस से यहाँ पे जो मैक्सिमम यूटीएनसी जहाँ तक वैरी करे वो 1/3। तो यहाँ से ले रहे हैं A से, तो ये क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ओके, एक पॉइंट से तो RB इंटू 3 माइनस 18 2/3 इंटू 3 कितना हो गया 0। तो ये RB की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर, तो RA यहाँ से आ गया 6 किलोमीटर, ये तो आंसर हो गया। अब हम लोग RA RB नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। सो फॉर draw the shear force diagram, we have to calculate the shear force calculation diagram calculation. Shear force at A will be upward positive because left and right for the portion of the section upward force is positive, so RSF will be RA equal to 6 kN, and A to be 6 minus area of load triangle will be a downward and 6 upward, so upward minus downward will be equal minus 12। अब एक तो डाउनवर्ड एक्शन लग रहा था, B पॉइंट पे जब हम लोग गए तो ये अपवर्ड और लग रहा है, तो -12 + 12 कितना हो गया 0। तो अब हम लोग A से लेकर B तक, A से B मैंने जितना इसमें मार्क किया था, A से B मैं सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करूंगा। तो SF A पे क्या है 6 किलोन्यूटन, मैंने एक स्केल ले लिया जो मैंने मान लिया ये 2.5 से 6 किलोमीटर मेरा 2.5 सेंटीमीटर स्केल है। 2.5 की लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर ली, बिकॉज बेस लाइन के जब भी जो भी वैल्यू पॉजिटिव दी जाती है ऑर्डिनेट्स पे वो बेस लाइन के अबाउट ड्रॉ की जाती हैं। तो 6 किलोमीटर मैंने RA ले लिया, और यहाँ से B पॉइंट पे और A से C तक, यहाँ से यहाँ तक पहले, और ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक, अब ये क्या हो रहा है, A से और B के बीच में ये पॉजिटिव से नेगेटिव लड़ाई कर रहा है। तो मैंने एक्स सेक्शन ले लिया, मैंने ले लिया कि डिस्टेंस x एंड A से ये शियर फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है, एक्स सेक्शन ले लिया। तो मैंने एट एक्स पॉइंट के लिए RA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल XXS टोटल लोड। तो RA क्या है वर्टिकल है, और ये डाउन टोटल लोड क्या होगा जिसका एरिया जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो हाफ इंटू x बेस। अब इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा XX के लिए बेस कितना होगा x। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम लोग यहाँ से लेते हैं हाइट इसकी क्या होगी, तो इसको दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो XX की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से ये XX की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी हाइट XX की वैल्यू। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 4x हो गया, तो 6 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये शियर फोर्स, ये जनरलाइज इक्वेशन निकल के आई यहाँ से, दिस जनरलाइज इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स ऑफ डिग्री 2। सो Fx, so this will be in parabolic, so shear force diagram will be parabolic in nature according to equation number 1। तो A पे पॉजिटिव है और B पे क्या नेगेटिव है, तो A और B बीच में क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा। तो मैंने ले लिया x डिस्टेंस पे जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू फ्रॉम पॉइंट लेफ्ट एंड A से, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1.732 मीटर। तो इस पॉइंट पे फ्रॉम एंड A से शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और फाइंड द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। सो देयर आर बेसिकली टू मेथड, आइदर वी कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट बाय टेकिंग मोमेंट और वी कैलकुलेट द शियर फोर्स इज बाय इक्वेटिंग इट टू 0। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट एट एंड MB इक्वल टू 0। तो MX निकाल लिया, लोड इंटू मोमेंट होता है व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, दैट इज लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर ट्रायंगल AXX, लोड RA इंटू x फॉर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव माइनस एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लोड ऑन AXX ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज एरिया। अब दिस डिस्टेंस फॉर स्मॉल ट्रायंगल, अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं इस डिस्टेंस से राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड से इस स्मॉल ट्रायंगल के लिए ये लेफ्ट हैंड हुआ और ये राइट हैंड हुआ। तो लेफ्ट हैंड से तो 2/3 इंटू x हो जाता। अब राइट हैंड XX से ले रहे हैं इस साइड से, तो क्या होगा x/3 होगा। सो क्या हुआ AX/3 यानी कि x/3
6x minus 2x cube by 3. So this is generalized question for bending moment of degree 3. So the nature of this bending moment will be cubic in nature. Now we have to calculate the value of maximum bending moment. So I have already told you the point at which the value of shear force is 0. The same point we get the value of bending moment is maximum. So mx will be obtained by the putting of value of x will be equal to root 3, which I have already found. So mx will be equal to 6 into x and 6 root 3 minus 2 by 3 into root 3 cube. root 3 into cube मतलब क्या होगा 3 root 3 हो गया, तो 4 root 3 किलोमीटर मीटर, तो दैट इज 6.928 किलोमीटर मीटर आंसर हो गया. तो ये बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेट कर लिया. अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. तो जो बेस लाइन की लेंथ मैंने यहाँ पे ली थी ए से बी शेयर फोर्स में, वही दिस द सेम बेस लाइन वी हैव टू ड्रॉ in bending moment diagram also. So here A to A the same line coincide and B point same line coincide. This will be cubic in nature, okay, cubic, and this will be also cubic. So A to B here point 6.928 from point C. A to C will be equal to 1 root 3 and 1.732 meter. I have already marked in shear force the same distance C point from here this point to this point. The value of bending moment maximum here its value is 6.928 kilometer meter and this point is 0. So this is all about the bending moment diagram for the given simply supported beam subjected to UVL uniformly varying load. Okay, तो जितनी भी इस सारे डायग्राम एक के नीचे एक बनाए जाते हैं. अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ कैंटिलीवर बीम के लिए, बिकॉज I already told in previous video I will discuss the case of cantilever beam. So I will take the problem of cantilever beam. Okay. तो कैंटिलीवर बीम के लिए जनरली हम लोग का यूडीएल लोड के तक ही पूछा जाता है, यूवीएल के नहीं पूछा जाता है. और यूवीएल लोड सिंपली सपोर्टेड बीम के सिविल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए पूछा जाता है. बाकी गेट और जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट में पूछ लेते हैं यूवीएल लोड रिलेटेड टू फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. तो मैंने एक प्रॉब्लम उठाई कैंटिलीवर बीम के लिए. सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हम लोग बात कर रहे थे व्हेन आई टॉक अबाउट द सिंपली सपोर्टेड बीम, अवर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन. बट फॉर कैंटिलीवर बीम इज दैट टाइप ऑफ बीम इन विच द वन एंड पोर्शन ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, जिसमें एक एंड फिक्स होता है और अदर एंड कैसा होता है, फ्री होता है. तो कैंटिलीवर बीम वी हैव नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर बीम में हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती. तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज ए यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1 किलोमीटर पर मीटर रन ओवर ए लेंथ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड. ड्रॉ द shear force and bending moment diagram for the cantilever. तो गिवन है लेंथ ऑफ बीम ऑलरेडी गिवन 2 मीटर, UDL intensity 1 kilometer per meter, a length from free end 1.5 meter. So first of all let us draw the load diagram here, and a free end say from free end the distance is already given 1.5 meter. Here we mark the point C, and from B to C the UDL load is acting, that is uniformly distributed load. I already told examples in previous video of uniformly distributed load, why we study uniformly distributed load. Here UDL intensity for span length of 1.5 meter is 1 kilometer per meter. तो 1 किलोमीटर पर मीटर UDL इंटेंसिटी है. BC स्पैन लेंथ की जिसकी स्पैन लेंथ है 1.5 मीटर. A to C फ्रॉम पॉइंट बिटवीन A to C देयर इज नो लोड इज एक्टिंग. तो वी हैव लेफ्ट द स्पेस. तो हम लोग shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे. तो सबसे पहले मैंने एक सेक्शन ले लिया, कंसिडर एनी सेक्शन बिटवीन C एंड B एट डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड. जब भी कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेक्शन लिया जाता है वो फ्री एंड से लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए. तो मैंने फ्री एंड से ले लिया. जब भी फ्री एंड से हम लोग यहाँ राइट हैंड पोर्शंस ले रहे हैं तो जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे और जो डाउनवर्ड फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे और जितने डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे. ओके, तो डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे. तो shear force क्या हो गया, अगर W है मान लो UDL इंटेंसिटी है तो Fx क्या हो गया W इंटू एक्स एरिया पॉजिटिव टू डाउनवर्ड. तो W क्या है कि वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 1 किलोन्यूटन. तो 1 इंटू एक्स यानी x किलोन्यूटन हो गया. क्या टोटल लोड हो गया इसके लिए. तो B पॉइंट पे क्या x की वैल्यू 0 है तो ऐसा shear force एट B क्या हो गया 0 हो गया. ओके, C पे क्या है
ए से सी तक जब हम लोग आए तो एक्स की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर, तो सी की फोर्स सी क्या हो गया 1.5 किलोमीटर। तो शियर फोर्स जो क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा सी से बी के बीच में, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, और ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं, जो जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, जब भी किसी को इसके दो सपोर्ट या दो लोड के बीच में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा हो तो वहाँ पे शियर फोर्स को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ए हियर इन दिस टाइप ऑफ बीम इन पॉइंट बिटवीन ए एंड सी देयर इज नो लोड, so the shear force value will be remain constant, that is no change, so shear force between A and C will be represented by a horizontal line as shown in figure. So load diagram I already drawn here, shear force here I will draw. So first of all I draw the base line that is from point A to point B, डेट लेंथ 2 मीटर की मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर ली स्केल लेके, जो ए पॉइंट इसका है वो इससे कॉन्साइड करेगा और बी पॉइंट इससे लोड कॉन्साइड करेगा। अब ये जो वैल्यू है ए से ए पे क्या है 1.5 किलोमीटर है, तो मैंने ये 1.5 किलोमीटर 1.5 से 1.5 किलोमीटर मैंने प्रॉपर स्केल ले लिया, तो 1.5 सेंटीमीटर की मैंने ड्राइंग ड्रॉ कर ली। अब ए से सी तक कोई लोड नहीं है, तो ए से सी तक क्या होगा, there no load, A से C तक value of shear force will be constant, so A from point A dash to C dash will be drawn by a simply horizontal line, and from this point to this point the shear force varies according to straight line law, and point B the value of shear force is 0, so simply we join this point to this point by a inclined straight line. So this is all about the shear force diagram, and this values will be positive, so we plot in the on the ordinate axis above the baseline. तो हम लोगों ने बेस लाइन के अबव इस वैल्यू को ड्रॉ किया है, जो भी नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो बेस लाइन के बिलो ड्रॉ करते हैं। तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ओके, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड बी के लिए क्या होगा, अब क्योंकि राइट हैंड साइड पोर्शन देख रहे हैं तो क्लॉक वाइज मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है राइट हैंड साइड सेक्शन में। तो माइनस डब्ल्यू एस क्या हो गया, एरिया ऑफ लोड डायग्राम यानी टोटल लोड। अभी टोटल लोड यूडीएल केस में क्या करता है, स्पैन लेंथ जो डिस्टेंस सेक्शन होता है उसके हाफ डिस्टेंस पे यानी x/2 पे, यानी कि दिस वन। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्स सेक्शन ले रहे हैं, तो टोटल लोड जो डब्ल्यू एक्स होगा वो यहाँ इसके हाफ बीसी के हाफ पॉइंट पे डिस्टेंस एक्ट करेगा, यानी x/2 पे, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, तो ये हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करेगा x/2 पे। तो x/2 हो गया, तो माइनस एक्स इंटू x/2 यानी माइनस x²/2 इसको लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब दिस इज जनरलाइज क्वेश्चन फॉर बेंडिंग मूवमेंट and it is of degree 2, so this bending moment will be negative and this varies according to parabolic law। तो इसका नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक लॉ होगा। तो एम बी भी एंड पॉइंट पे क्या है, एक्स की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। सी पे क्या है, जब बी से सी पे आए तो एक्स की वैल्यू क्या थी 1.5, तो यहाँ पे 1.5 रखा तो क्या आ गया माइनस 1.125 किलोमीटर मीटर आ गया। अब यहाँ से क्लियर है कि इसका नेचर पैराबोलिक होगा। टोटल लोड हम लोग जब निकालेंगे यूडीएल के लिए तो W इंटू 1.5, W की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो 1 फ्रॉम B टू C के लिए क्या हो गया 1.5। अब देखो यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है, अभी मैंने B से C के बीच में X सेक्शन लिया है। अब ये X की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है C पॉइंट पे क्या है X की वैल्यू 1.5 हो गई। अब हम लोग राइट देख रहे हैं तो पूरा ही राइट देखेंगे कैंटिलीवर बीम में। ओके, तो X की वैल्यू इस सेक्शन के लिए A से C के लिए भी तो हम लोग को चाहिए वैल्यू, इसको डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1.5 से 2 मीटर के बीच में ये वैल्यू वैरी करेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, ये B से A से C से एक सेक्शन x ले लेंगे, तो जहाँ पे हम लोग दूसरा सेक्शन ले लेंगे डिस्टेंस x के बीच में। तो ये x यहाँ इस पोर्शन के लिए A से लेकर C पोर्शन की x की वैल्यू यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस 1.5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 पे और यहाँ से हम लोगों ने दिया x, तो ये क्या हो गया x माइनस 1.5। ओके, सॉरी x माइनस 1.5 क्या है, x माइनस 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 0.75 हुआ ये डिस्टेंस, इसका हाफ, ये 1.5 का हाफ कितना हो गया भाई, ये हो गया 0.75 हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये x माइनस 0.75, क्योंकि ये जो वैल्यू वेरी करेगी वो 0.75, x की वैल्यू जो AC पोर्शन के लिए वेरी करेगी वो 0.75 से 2 मीटर के लिए वेरी करेगी। ओके, ना कि 1.5 से, जो कि मैंने बोल दिया था 0.75 से 2 मीटर के लिए वेरी करेगी।
तो यहाँ से यहाँ तक AC पोर्शन के लिए क्या होगा, इस डिस्टेंस जो होगी वो x माइनस ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 0.75, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, अब मैंने यहाँ सेक्शन ले लिया है अगर, तो x माइनस 0.75। ओके, तो टोटल लोड जो ऐड करेगा वो 0.75 मीटर फ्रॉम P एंड B एंड ए डिस्टेंस ऑफ x माइनस 0.75 फ्रॉम एनी सेक्शन बिटवीन A एंड C। तो अब हम लोग, तो यहाँ पे x वेरी कर रहा है 1.5 से 2 मीटर, तो मोमेंट हम लोग उस लोड का निकालेंगे, क्या होगा A एंड C के बीच, तो लोड ड्यू टू UDI के लिए जो लोड हुआ वो क्या हो गया, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x माइनस 0.75, क्योंकि हम लोग AC पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं। माइनस और राइट हैंड साइड के लिए निगेटिव होता है, तो माइनस 1.5 इंटू एक्स माइनस 0.75 हो गया। तो ये एक लीनियरली वेरिएशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो ए और सी पोर्शन के लिए तो क्या फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन लॉ होगा, फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ से सी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर, तो एम एट पॉइंट सी क्या हो गया माइनस 1.25, और ए पॉइंट क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो एम में क्या हो गया माइनस 1.875 किलोमीटर हो गया। तो बैंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो इसमें क्या है, लाइन सी सी डैश जो है वो दिखाया है 1.125 किलोमीटर मीटर, और ए डैश 1.875। यानी सी सी डैश कौन सी है, ये निगेटिव है, तो मैंने बेस लाइन के ब्लो ड्रॉ किया, तो सी सी डैश ये दिखाया है 1.125 और ए डैश यहाँ पे दिखाया है। तो ये मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से स्केल ले लिया ये, तो यहाँ से इस पोर्शन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्या होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। ओके, तो दिस इज द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम which I have just discussed. I will only make part 4 of this video if any student suggest for the overhanging beam के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरफ्रैक्चर क्या होता है। ओवरहैंगिंग बीम वो बीम होती है जब जहाँ पे जो एंड पोर्शन होता है वो एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब जो सपोर्ट एंड पे ना लग के एंड पोर्शन से वो बीम एक्सटेंड कर दी जाए, तो वो सपोर्ट रिएक्शन के बीच में जो वैल्यू होती है शेयर फोर्स की वो पॉजिटिव होती है, एंड पे नेगेटिव होती है। ओके, तो अगर स्टूडेंट की डिमांड रहेगी या किसी की डिमांड रहेगी जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं पार्ट 4 भी इसके लिए बता दूंगा। ओके, अदरवाइज दिस विल बी द फाइनल पार्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। थैंक यू।